Hello everyone. Today we will discuss the different field properties available in MS Access. So what is exactly a field property? The properties of a field describe the characteristics and the behavior of data which is to be added in that field, right? That means कि आप एक कॉलम जो टेबल में क्रिएट कर रहे हैं उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा आप एंटर करने वाले हैं उस डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फील्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू आई फाइंड दीज फील्ड प्रॉपर्टीज? They are present in the design view of a table. So let's have a look. So in your Access database, just go to the Home tab and change the view to the Design view. Now the Design view is split into two parts, two horizontal parts. Okay, the top part is this, where you have to specify the field name and the data type, and at the bottom are your field properties. So as you can clearly see at the bottom, it says field properties. These are all your field properties at the left hand side, and on the right hand side there are blank spaces for you to specify the values of those field properties. Also keep in mind that these properties may differ depending upon the data type of the field. For instance, at this moment, the ID field has been specified with text data type. So these are the given properties. But if I switch it to number, they may differ. They may be more or they may be less. Now, if I use the yes or no, you can see the field properties have been reduced. So, कितनी field properties आपको available है? It solely depends upon the data type that you have chosen for that particular field. So, what are the examples of a field property? Examples are caption, required, validation rule, field size, text align, etc. Well, in this chapter, we'll be covering up some of the common field properties which are used in MS Access. Alright? So let's begin with the first field property, which is caption. Now, what is the purpose of caption field property? This property helps us to display another name for the field which could make it more relevant. Now, let's consider an example. Suppose I have to create a table 1, with the following field names. The first field is serial number. Data type में इसमें number ले रही हूँ. The second field name is names. Data type इसमें text भी appropriate है. Then I'll be taking marks, जिसके लिए again आप number data type choose कर लीजिए. Alright? तो ये 3 fields मुझे बनाने थे अपने टेबल में. Now I want कि जब serial number लिखा है तो इसके साथ यहाँ पे डॉट भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम नंबर को शॉर्ट में लिख रहे हैं. लेकिन आप देखिएगा, अगर मैं इसके बाहर कहीं पे भी क्लिक करती हूँ तो मेरे स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, एंड दैट इज द फील्ड नेम इज नॉट वैलिड. क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि वैलिड नहीं है फील्ड नेम? बिकॉज मेक श्योर दैट द नेम डज नॉट कंटेन अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए उसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, लीडिंग स्पेसेस और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ये सभी आपके फील्ड नेम में आप नहीं यूज कर सकते. So that means I'll have to remove it. But what if I want that dot? What if I want that full stop? तो मैं कैसे कर सकती हूँ? Well, there is a way. I can use the caption property. Alright? Now, for that, let's move a bit down to the field properties. I have selected this. This is my field जिस पे मैं काम कर रही हूँ. तो मैंने serial number ही select कर रखा है. Alright? और यहाँ पर नीचे field properties में कैप्शन प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ लिखी है कैप्शन प्रॉपर्टी के आगे आप लिख लीजिए कि आपको कॉलम में क्या शो करना है. मुझे हेडिंग चाहिए सीरियल नंबर और मैंने डॉट भी प्लेस कर दिया यहाँ. ऑलराइट,
तो ऊपर फील्ड नेम्स में आपने डॉट नहीं लगाया, मगर नीचे कैप्शन प्रॉपर्टी में आपने सीरियल नंबर के साथ डॉट लगा दिया। नाउ लेट्स चेंज द व्यू टू द डेटा शीट व्यू। आप देख सकते हैं कि आपने जो टेबल क्रिएट करी है टेबल 1, उसके पहले कॉलम सीरियल नंबर में डॉट प्लेस हो गया है। तो दिस इज द यूज ऑफ कैप्शन प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। अब जैसे कि हमें टर्म से पता चल रहा है, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी फील्ड में डेटा एंटर करना मैंडेटरी है कि नहीं है। ऑलराइट, so this property helps us to specify whether it is mandatory to enter a value into the field or not। और अगर ये मैंडेटरी है, अगर आपने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वैल्यू यस असाइन कर दी है, तो फिर आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि जब आप अपने रिकॉर्ड्स की एंट्री कर रहे हैं तो उस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, चाहे आप उसमें कोई भी वैल्यू दीजिए, मगर वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो उसी टेबल में अगर आप चाहते हैं कि नेम्स वाली फील्ड को आप कंपल्सरी रखें कि इसमें एंट्री होनी जरूरी है, तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहां से ऊपर से नेम्स फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे जहां फील्ड प्रॉपर्टीज आएंगी, यहां पर रिक्वायर्ड देखिए, जनरल में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अभी ये नो हो रखा है, आप इसे रिमूव करके यस कर दीजिए। ठीक है, अब यस करने के बाद आप अपने व्यू पे जाइए, डेटा शीट व्यू, एंड स्टार्ट द एंट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपने सबसे पहले सीरियल नंबर की एंट्री करी 1, फिर आपने नेम की एंट्री करी एंड आपने मार्क्स स्पेसिफाई कर दिए। ऑलराइट, देन आपने सीरियल नंबर 2 डाला और अब आप सीधा मार्क्स पे जा रहे हैं। देखिए, आप नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री में जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे, यहां पर आपको एरर आ गया, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द टेबल 1 नेम्स फील्ड, यानी कि टेबल 1 की जो नेम्स फील्ड है उसमें आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। यू हैव टू, यू मस्ट एंटर इट। ओके, आप यहाँ पे ओके कीजिए, पहले यहाँ वैल्यू दीजिए कुछ भी, और उसके बाद ही आप अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री पे जा सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कर्सर भी नहीं मूव करने देगी। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलिडेशन रूल। So this property helps us to create an expression which is tested against the data entered. Basically आप अपने कॉलम में सिर्फ एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आपका डेटा उस कंडीशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो करेक्ट डेटा माना जाएगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट माना जाएगा। ऑलराइट, the data entered will be considered valid only if it follows the set criteria, otherwise an error is displayed. So again, let's have a look at the example. So we are back to the design view of my table. अब मैं वैलिडेशन रूल लगाऊंगी मार्क्स में। ठीक है, सपोज मुझे ये क्राइटेरिया रखना है कि मार्क्स हमेशा 30 अबव ही होने चाहिए टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऊपर से अपनी फील्ड सेलेक्ट करी, अब नीचे हम फील्ड प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर आप देखिए वैलिडेशन रूल एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए, लेकिन यू डोंट हैव टू टाइप इट इन टेक्स्ट की स्पेलिंग नहीं लिखना है ग्रेटर देन, आप रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन का साइन लगाइए। ऑलराइट, तो आपने लिखा ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये लिखा आपने, और अब आप अपने व्यू को डेटा शीट व्यू में चेंज करेंगे। तो आप गए व्यू बटन, डेटा शीट व्यू में। ऑलराइट, सेव द चेंजेस, यस। अब देखिए, आप अपने थर्ड रिकॉर्ड की एंट्री कीजिए, नेम स्पेसिफाई कीजिए और मार्क्स स्पेसिफाई कीजिए। नाउ रिमेंबर, मार्क्स के लिए हमने कंडीशन दी है कि वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर मार्क्स दिए 100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री कीजिए, रिकॉर्ड नंबर 4 अनुभव, और सपोज यहाँ आपने मार्क्स की एंट्री कर दी 29। अब देखिए, आप जब फर्दर फिफ्थ रिकॉर्ड के लिए प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर फिर से एरर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये जो टेबल 1 है, इसके जो मार्क्स फील्ड है, यहाँ पर आपने वैलिडेशन रूल लगा रखा है ग्रेटर देन 30। तो ये आपका जो डेटा आपने एंट्री करी है, ये फॉलो नहीं करता है इस रूल को, इसलिए यू हैव टू चेंज दिस डेटा। तो अब मैं इसे रिमूव करके सपोज मैंने कर दिया 31 इज ग्रेटर देन 30। अब देखिए, आप नेक्स्ट एंट्री इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलिडेशन टेक्स्ट। अब ये प्रॉपर्टी वैलिडेशन रूल के साथ ही यूज होती है।
So this property helps us to define the error message which is to be displayed on the screen when the validation rule is not met while entering the data. यानी कि एरर जो अभी आप डायलॉग बॉक्स में मेरी स्क्रीन पर देख रहे थे उसको भी आप अब खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यही लिखा आना चाहिए एरर में. ऑलराइट, so let's go by the example. So again in the design view marks field has been selected और नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज में जहां वैलिडेशन रूल आपने ग्रेटर देन 30 लिखा है वही वैलिडेशन टेक्स्ट भी नीचे लिख दीजिए. मैंने लिखा द डेटा दैट यू हैव एंटर्ड इज नॉट ग्रेटर देन 30. सपोज ये एरर आना चाहिए स्क्रीन पे तो वो मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख दिया. ऑलराइट, अगेन स्विचिंग द व्यू टू द डेटा शीट व्यू. नाउ आई विल ट्राई टू एंटर अनदर रिकॉर्ड. तो मैंने रिकॉर्ड 5 की एंट्री शुरू करी और यहाँ पर एक नेम दिया मुस्कान. अब यहाँ मुझे मार्क्स देने हैं तो मैंने मार्क्स इस बार ही दे दिए 30. ऑलराइट, अब आपको पता है कंडीशन ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, इसका मतलब एरर आने वाला है. तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जैसे ही एंट्री के लिए मैं गई अगेन एरर डायलॉग बॉक्स आया, लेकिन अब आप देखिए उसने पिछली बार की तरह नहीं एरर दिखाया. अब क्या एरर आ रहा है? द डेटा दैट यू हैव एंटर्ड इज नॉट ग्रेटर देन 30. ये वो टेक्स्ट है जो आपने वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई किया था. ऑलराइट, तो ये यूज होता है वैलिडेशन टेक्स्ट का. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिफॉल्ट वैल्यू. अब इसका क्या पर्पस है? This property helps us to set a value which will be automatically inserted into the field while entering a record. यानी कि आप जब अपने फील्ड में रिकॉर्ड्स की एंट्री शुरू कर रहे हैं तो पहले से ही सेल के अंदर कोई वैल्यू आनी चाहिए, वो डिफॉल्ट वैल्यू कहलाता है. So let's go by the example. तो in the same table, suppose मैं ये चाहती हूँ कि जो सीरियल नंबर वाली फील्ड है उसमें मेरे नंबर एंट्री करने से पहले 0 लिखा है हमेशा हर रिकॉर्ड के लिए. तो व्हाट विल आई डू? आई विल सेलेक्ट द फील्ड सीरियल नंबर. ठीक है, नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा है, इसमें आप स्पेसिफाई कर दीजिए 0. ठीक है, तो यहाँ 0 स्पेसिफाई करने के बाद अब आप अपना व्यू चेंज कीजिए टू द डेटा शीट व्यू एंड नाउ लुक केयरफुली. देखिए अभी तक आपकी टेबल में 5 रिकॉर्ड्स की एंट्री थी सीरियल नंबर 5 तक. नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री अभी होनी है लेकिन देखिए सीरियल नंबर में क्या डिस्प्ले हो रहा है? 0. तो अब आपको सीरियल नंबर 6 की एंट्री करनी है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए और आप अपने नंबर की एंट्री कर दीजिए 6. और देखिए जैसे आपने 6 टाइप करा नीचे फिर 0 आ गया. दैट मीन्स ये रिकॉर्ड करंट है, ये पेंसिल आइकन शो करता है कि करंटली आप इस रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए उसने पहले से ही एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखा दी. तो आप यहाँ अपना नेम एंटर कर लीजिए जो भी आपको चाहिए. सपोज आई एंटर निखिल और अब आप मार्क्स की एंट्री कर लीजिए सपोज 78. तो देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए फिर से आपके पास सीरियल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है. राइट, सो दिस इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. Now let's move on to the advantages of MS Access. Well, जब भी आप MS Access सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आती हैं जैसे डेटा इंटेग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी. सो उन टर्म्स का मीनिंग क्या है ये हम एडवांटेजेस से समझेंगे. द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट MS Access reduces डेटा रिडंडेंसी. इसका क्या मीनिंग है? रिडंडेंसी सिंपली मीन्स डुप्लीकेशन. तो डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. MS Access में आप अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आपस में लिंक कर सकते हैं. और इसके लिए आपको कॉलम्स को बार बारी रिपीट करने की भी नीड नहीं होती कि आपको मल्टीपल कॉलम्स हर टेबल में बनाने पड़े. इसीलिए वी से दैट इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी. देन it improves data security by limiting access to authorized users only. यानी कि जो authorized users हैं सिर्फ वो ही आपके डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को, उनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं. Then it removes data inconsistency as the data updation is done in the master file and it is reflected
in all the linked files. अब जब आपने एक पर्टिकुलर जगह पे डेटा स्टोर करके रखा है मास्टर फाइल में और उससे आपने मल्टीपल टेबल्स को लिंक कर दिया है, तो अगर आपने मास्टर फाइल में डेटा में कुछ चेंजेस करे हैं, चाहे कितने भी माइनर चेंजेस क्यों ना हो, बाकी टेबल्स उसी डेटा को यूज कर रहे हैं, राइट? तो इस वजह से बाकी टेबल्स को ऑटोमेटिकली अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंसी अपने आप रिमूव हो गई। देन it maintains data integrity as correctness of the data is maintained by specifying the data types and validation rules. अब जैसे कि अभी हमने देखा था, वैलिडेशन रूल आप अपनी फील्ड में लगा सकते हैं, तो इससे आपकी डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। इसका मतलब आप एक फील्ड में क्या डेटा एंटर कर रहे हो, वो डेटा करेक्ट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये भी मेंटेन रहता है, बिकॉज इट अलाउज यू to perform validation rules. All right. So with this, we have finished off with the first lesson of MS Access.